Hello, students. Welcome back to Gulail series powered by Prarambh Science Academy. Today, in this Gulail series, we'll be starting off with a new chapter, which is molecular basis of inheritance. As we are aware, this is again one of the most important chapter for your NEET examination. So let's begin. In this chapter, we'll be understanding as to what exactly genetic material is, how it was discovered, how from genetic material you have different things that can be derived, that can be made. How was that process been discovered and what exactly is the process? All right. So सबसे पहले जब हम जेनेटिक मटेरियल का बात करते हैं बेटा, जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करना रहेगा, तो उसके लिए उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, मेजरली अगर हम देखेंगे तो चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके पास। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो उसके पास होना चाहिए, दैट इंक्लूड्स सॉरी सबसे पहला प्रॉपर्टी जो उसके पास होना चाहिए, दैट विल इंक्लूड इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, वो अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए। सेकंड, स्टेबिलिटी इन एक्सप्रेशन, एंड लास्टली इट शुड हैव स्टेबिलिटी इन एक्सप्रेशन होना चाहिए उसके पास। इसके अलावा अ, इसके पास इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर, और rather we can say it should be able to inherit characters from one generation to next generation. Apart from that, lastly, it should show some chance of variation. इस प्रकार से ये चार प्रॉपर्टी जिस भी किसी के पास होगी, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो दो केमिकल्स है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। दोनों के पास ये प्रॉपर्टी है। डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और आरएनए सिर्फ और सिर्फ वायरस के अंदर दिखाई देता है एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए as a nucleic acid is a polymer of nucleotide. What is nucleotide? It is composed of two chemicals, which is two parts, that is nucleosides and phosphate. Nucleoside is composed of sugar and nitrogen base. Nitrogen base can be of two types, which is purines and pyrimidines. Let us get into the details. Sugar जो होता है वो हमेशा एक पेंटोज शुगर होगा, या तो हमारे पास एक राइबो शुगर होगा जो आरएनए में दिखता है, या डीऑक्सी राइबो शुगर होगा जो डीएनए में होता है। अगर हम ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें बेटा, तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में ये डिफरेंस हो जाता है कि राइबोज के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज के सेकेंड ग्रुप में O मिसिंग होता है। दैट इज द रीजन इट इज आइडेंटिफाइड टू बी एज डीऑक्सी। राइट, दैट्स द रीजन इट इज आइडेंटिफाइड टू बी एज डीऑक्सी। Phosphate में it is H3PO4 that you will find out. And when we talk about nitrogen base, there are five different types of nitrogen bases that we have, which is adenine, guanine, cytosine, thymine, and uracil. So जनरली क्या सीन होता है जब एडेनाइन, ओके यहाँ पे अपने हम वो लिख देते हैं कि प्यूरिन जो होता है उसमें यू विल हैव एन एग्जांपल एज एडेनाइन एंड गुआनिन. Purines are double ring structure that we observe, double nitrogen ring structure. Pyrimidine will have thymine, it will have uracil, and it will have cytosine, wherein we are very much aware that thymine is seen only in DNA and uracil is only seen in RNA. And this is a single nitrogen ring structure. All right, beta? अब क्या सीन होता है कि जब हम आरएनए के बारे में बात करते हैं, तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो राइबो शुगर के साथ बाइंड होता है। तो जो कंपाउंड हमको बन के मिलता है उसे हम कहते हैं एडेनोसाइन। और ये एडेनोसाइन के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो वी कॉल इट एडेनोलिक एसिड या फिर एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। लाइकवाइज जब गुआनाइन में राइबोज शुगर लगता है तो यू कॉल इट गुआनोसाइन, और इसमें जो फॉस्फेट लगता है तो यू कॉल इट गुआनिलिक एसिड, एंड द you can call it as guanilic acid or guanosine monophosphate. Likewise, you can call for rest of the two as well, and same goes for DNA as well, wherein you have deoxyadenosine or deoxyadenilic acid, deoxyguanilic acid, so on and
so forth. ठीक है? When we talk about the structure of DNA, it was very famously discovered by a scientist called as Watson and Crick in the year 1953. The DNA that is accepted is a double helix model of DNA, which is a BDNA basically. ठीक है? उसे हम बी टाइप ऑफ डीएनए कहते हैं. वॉटसन एंड क्रीक ने ये डिस्कवर किया था फ्रॉम an X-ray crystallography data, that is X-ray diffraction data, which was ideally performed by Wilkins and Franklin again in the year 1953 में ही इन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था. लेकिन उससे जो उनको रिजल्ट्स मिला था, वो रिजल्ट्स उनको समझ नहीं रहे थे कि इंटरप्रेट कैसे करें. तो वॉटसन और क्रीक वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके दिए, और इंटरप्रेट करने के बाद डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करके दे दिया. एंड थस टुडे वी कॉल देम टू बी एज डिस्कवर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर. ठीक है? ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इट ओबेस शरगाफ्स रूल. शरगाफ ने क्या कहा था कि जब कभी भी कोई भी न्यूक्लिक एसिड अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा, वेदर इट इज डीएनए या आरएनए, तो उनमें नंबर ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine. यानी टोटल A plus G will always be equal to C plus T, which is nothing but can also be written as A plus G upon T, C plus T will be equal to 1. All right. With that particular ratio between adenine, thymine, and guanine and cytosine is always constant and is equal to 1. All right, beta. What are the salient features of double helix structure? So when you talk about double helical structure of DNA, in that case, they have two polynucleotide chains which are anti-parallel to each other, meaning 3 prime to 5 prime. एक strand अगर होगा तो दूसरा strand will be from 5 prime to 3 prime. That's how it basically goes about. All right. So they show anti-parallel nature, wherein sugar and phosphate of each structure. Yani if this is the, sorry, if this is with adenine and this is phosphate, you've got another chemical with, let's say, cytosine having phosphate. So sugar molecule and phosphate molecule will bind to each other and will form a particular structure which is called as phosphodiester bond. That becomes the backbone of DNA and is also called a sugar phosphate bond. All right. Purines will always bind with pyrimidines with the help of hydrogen bonds, wherein A always binds to T with double hydrogen bond and G always binds to C with triple hydrogen bond. Both strands are highly coiled in nature and they will coil with the right-handed fashion. राइट हैंड रूल दिखाई देगा. और जब वो कॉइल होता है तब एक कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर मिलता है. दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम बेसिकली. कुछ इस प्रकार से होता है वो, जिनमें एक में 5 और दूसरे में 5. ये हो गया उसका एक टर्न. So this one turn of DNA will have 10 base pairs present in them. दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा, तो इन दो के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर्स, व्हिच इज नथिंग बट 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. और ऐसा ही दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे अपने को दिखाई देगा, तो उनके बीच का जो डायमीटर रहेगा दैट विल बी 2 नैनोमीटर्स और 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. ऑलराइट. So yeah, you have 10 base pairs present in one single turn. This is the major groove and these are the minor grooves. So either from one major groove to another major groove or one minor groove to another minor groove, you will have one turn of DNA. हर एक टर्न ऑफ डीएनए में हमको 10 बेस पेयर मिलेंगे. तो ओवरऑल एक टर्न का अगर हम देखें, इफ वन टर्न इज हैविंग 10 बेस पेयर, तो उसका जो लेंथ हो जाएगा दैट विल बी 3.4 नैनोमीटर्स या फिर 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. You just have to multiply by 10 and that's how it goes about. इसका जो pitch होता है, that is considered to be 34 or 3.4 nanometers का pitch. That is 34 Armstrong या 3.4 nanometers pitch, right? So pitch is 34 Armstrong. Per base there is 3.4 Armstrong का rise that was being seen. Total rotation is 360. पूरा 360 degree rotate हो जाता है and per base pair rotation will be of 36 degrees Celsius. And that's the reason that the angle of rise that you observe between two base pairs will always be 36 degrees. All right. Yeah, one base pair tends to stocks over the other. That is it. There's a stacking which has been seen, which is thus confers extra stability to the double-stranded helical.
structure. That's how the DNA structure basically looks like. We have any which was discussed the structure of DNA in detail in biomolecule chapter. So you can pick up some videos from there as well, right? And when we talk about packaging of DNA, how exactly DNA is being packed is when we understand उसमें जो बेसिकली लेंथ होता है डीएनए का वो 2.2 मीटर्स का होता है और न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया बेटा. So it is very, very important that we super pack this particular DNA. And for super packaging of DNA, there are different kinds of proteins which are involved in doing that. So there are several folds of coiling that is undergone for DNA packaging. अब डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा. सबसे पहले डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है. वो एसिडिक मॉलिक्यूल है अगेन बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप है और ये हाइड्रोफिलिक है इस वजह से डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो पास हो सकता नहीं है. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में अगर हम डीएनए का बात करते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ नहीं दिखता बट वो किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के आसपास कॉइल हो जाता है और कॉइल होके वो न्यूक्लियोइड के अंदर दिखाई देता है या न्यूक्लियोइड वाले रीजन में दिखाई देता है और इसको काफी बार हम पॉलीअमाइन्स भी कहते हैं. इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को पॉलीअमाइन्स भी कह सकते हैं जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है. जबकि अगर यूकैरियोट में बात करेंगे तो यूकैरियोट में काफी ज्यादा कॉइलिंग और फोल्डिंग होता है और जनरली ये फोल्डिंग होता है अराउंड अ पर्टिकुलर प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बेसिक प्रोटीन है जो आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड में रिच होता है. क्योंकि उसके पास ज्यादातर आर्जिनिन और लाइसिन है जो खुद एक बेसिक अमीनो एसिड है तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटीन के पास भी बेसिक के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं यानी बेसिक प्रोटीन होने के प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं. ठीक है. अब जब हम बात कर रहे हैं इस हिस्टोन प्रोटीन का तो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के पैकेजिंग को हेल्प करता है या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 4 टाइप के प्रोटीन का ऑक्टोमर बनता है यानी 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 एंड 2 H4 रहेंगे जो क्लटर होके एक राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके आसपास डीएनए कॉइल होता है. अब यहाँ पे जो डीएनए कॉइलिंग बहुत ज्यादा बता दिया गया है बेटा इतना डीएनए कॉइलिंग नहीं होता है. इफ दिस इज हिस्टोन प्रोटीन दैट यू ऑब्जर्व तो इसके आसपास देयर इज जस्ट वन टर्न एंड सेकंड टर्न होते होते छूट जाता है. ठीक है. दैट्स हाउ इट गोस अबाउट. यू हैव आई रिपीट बैक अगेन. यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये एक टर्न हो गया और ये दूसरा टर्न होते होते छूट जाता है. The entire second turn does not take place. Let me just try to do it again. There's one turn of DNA and then the second होते होते रुक जाता है. So there is 1 and 3/4 turn or rather you can say 1.75 turn of DNA is being seen over here. ठीक है. अब इसमें यहाँ पे जो डीएनए हमको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं कोर डीएनए और यहाँ पे जो हमको डीएनए दिखाई देता है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए. ठीक है. तो इस प्रकार से अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये कैसा दिखता है. तो माइक्रोस्कोप के अंदर यू विल हैव हिस्टोन प्रोटीन दैट इज न्यूक्लियोसोम. इसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कहेंगे जिसको स्टेबल होने के लिए बाजू में एक प्रोटीन लगा दिया जाता है विच इज H1 प्रोटीन दैट इज दिस वन. ठीक है. तो यू हैव हिस्टोन प्रोटीन प्लस लिंकर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस लिंकर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस लिंकर डीएनए. तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने को डीएनए का पैकेजिंग दिखाई देता है. इसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बिकॉज ये एक्चुअली दिखता ऐसा है कि एक धागे के अंदर मोती पिरोए गए हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि टोटल 200 पे 200 200 बेस पे डीएनए 200 बेस पर लॉन्ग डीएनए कॉइल होता है एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पे और उनका कॉइलिंग 1.75 या 134 टर्न का कॉइलिंग होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सो इसका जो डायामीटर हो जाएगा आफ्टर कॉइलिंग अराउंड द nucleosome will be still 20 angstrom. Then it will form a chromatin fiber or it will form a nucleosome fiber which will have 100 angstrom ka diameter. It will later on be responsible for coiling further to form a solenoid structure that will have 300 angstrom ka diameter.
that will undergo further supercoiling to form a chromatin fiber which has 3000 angstrom ka diameter. It will further form a chromatid or a chromosome that will have 7000 angstrom का diameter, which is nothing but 700 nanometers का diameter उसका अंदर दिखाई देता है. I think the concept is clear. And that's how the packaging of DNA takes place. अब ये पूरे पैकेजिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स काम नहीं लग सकते अपने को, बिकॉज उनके पास उतना स्टेबिलिटी नहीं रहेगा. इसलिए हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ एक और प्रोटीन ऐड हो जाता है विच इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जो ये पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने में अपने को हेल्प करते हैं. करेक्ट. So nucleosome is in chromatin will appear as beads on string structure as we've already discussed. दो प्रकार के क्रोमैटिन फाइबर्स हमको दिखाई देते हैं बेटा. एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन जो रहता है उसमें न्यूक्लियोसोम लेवल तक का कॉइलिंग हो जाता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन बहुत ही ज्यादा सुपर कॉइल्ड एंड सुपर पैक्ड होता है. तो क्योंकि ये लूजली पैक होता है इसलिए ये लाइटली स्टेन होता है और ये डार्कली स्टेन हो जाएगा. और ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा बिकॉज पूरी तरह से पैक हो चुका है. ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होगा. एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं दैट दिस हैज मोर जेनेटिक मटेरियल देन नॉन जेनेटिक मटेरियल, whereas this one will have less genetic material. जेनेटिक मटेरियल इसके पास भी होगा बट कम क्वांटिटी में. ठीक है. Now how exactly did we get to know? अब ये सारा हमको समझा कि